اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی درجات وتبلغنا باقصى الغایۃ من جميع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ المولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج سے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری فصل کی تعلیمات عرض کروں گا. تو پہلی فصل کی تعلیمات میں نے اولیاء اللہ کا اور ان کی کرامات کا اور ان کے شان و مرتبہ کا خلاصہ عرض کیا اپنی. اور اب جو ہے میں سرکار غوث پاک کی دوسری فصل بیان کر رہا ہوں، اور یہ فصل کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں کتاب کے طور پہ پڑھوں گا تو ظاہر سی بات ہے بعض کے سمجھ میں آئے گی اور بعض کے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. اور چونکہ تعلیمات تو سرکار غوث پاک کی اور اصل چیز کو سمجھانا ہی مقصود ہے، تو میں اپنی زبان میں اس دوسری فصل کا خلاصہ کر دے رہا ہوں. اور دوسری فصل سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار کی ہے، اور دوسری فصل ہے جس کا صفحہ نمبر 77 سے ہے. تو سرکار غوث پاک دوسری فصل میں جو ارشاد فرما رہے وہ یہ ہے کہ جس کا خلاصہ میں اپنی زبان میں عرض کر دے رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ جائے اور میرا وقت بھی بچے گا اور آسانی کے ساتھ. بس میں ریفرنس کے طور پہ کتاب کا حوالہ دے دے رہا ہوں. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری فصل میں ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے جو پیدا کیا تو عالم لاہوت میں اس کی روح قدسی کو پیدا کیا. یہاں غوث پاک اب تک جو مقامات جو پہلی فصل میں سرکار غوث پاک نے بیان کیا تھا تو وہ نزول سے عروج کی طرف تھا، یعنی بندہ ناسوت سے ترقی کر کے ملکوت میں گیا، ملکوت سے ترقی کر کے جبروت میں گیا، جبروت سے ترقی کر کے لاہوت میں، جس کو میں نے کہا تھا کہ سیر اللہ کی منزل وہ عبور کر رہا تھا. اور پھر لاہوت سے جا کے پھر سیر اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں پھر وہ سیر کرتا ہے، اللہ کی قرب معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے. تو یہاں جو ہے سرکار غوث پاک پہلی فصل میں آپ نے عروج بتایا تھا، اب یہاں دوسری فصل میں آپ نزول کی تعلیمات فرما رہے ہیں کہ بندے کا نزول کیسے ہوا. کیونکہ بندہ غوث پاک نے فرمانا کہ اپنے وطن اصلی کی طرف جانے کی کوشش کرے، تو اس کا جو وطن اصلی ہے وہ اصل میں عالم لاہوت ہی ہے، جہاں اللہ نے اس کی روح کو پیدا کیا، اور اس روح کا نام روح قدسی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس روح کا نام روح قدسی رکھا. تو روح قدسی کو عالم لاہوت میں جب پیدا کیا، پھر عالم لاہوت سے جب اس روح نے نزول کیا عالم جبروت میں، اور عالم جبروت کا جب اس جبروتی لباس اس روح کو پہنایا تو اس روح کا نام روح سلطانی پڑ گیا. اور پھر جب اب یہاں غوث پاک نزول کی بات فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ وطن اصلی سے بندہ اسفل سافلین کی طرف آ رہا ہے، یعنی اس دنیا کی طرف. تو یہ پہلے آپ نے عروج کی بات فرمائی کہ بندہ اپنے وطن اصلی کی طرف واپس جائے. اب غوث پاک اس فصل میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے وطن اصلی سے اس عالم میں، اس ظاہری عالم میں، اس ظاہری دنیا میں، عالم اجسام میں، اس اسفل سافلین میں کس طرح اس کا نزول ہوا ہے اس کا بیان آپ نے فرمایا. تو بندے کو غوث پاک نے فرمایا کہ روح قدسی نے جب اللہ نے جب پیدا کیا عالم لاہوت میں اس کی روح کو، تو روح قدسی تھی وہ. اور روح قدسی جب نزول کرتی ہے عالم جبروت میں اور جبروتی لباس پہنتی ہے تو اسے روح سلطانی کہتے ہیں. روح سلطانی جب نزول کرتی ہے عالم ملکوت میں، یعنی عالم جبروت سے وہ ملکوت میں جب اس کی روح نزول ہوئی، یعنی نیچے کی طرف آئی، تو پھر عالم ملکوت میں اس کا نام روح سیرانی روانی پڑ گیا. اور پھر وہاں سے ملکوت سے جب اس عالم اجسام میں، عالم ملک اور عالم ناسوت بھی جسے کہتے ہیں، اس عالم ظاہر میں جب وہ روح آئی تو اس کا نام روح جسمانی پڑ گیا. تو سرکار غوث پاک فرماتے یہ بندے کی روح کا نزول ہوا ہے. تو یہ چار روحیں ہیں، اصل میں ایک ہی روح ہے جو مختلف عالم میں اس کا نام اور اس کے مراتب، اس کی صفات چینج ہوتی گئی. اور جب عالم اجسام میں آ گئی تو اسی کو روح جسمانی کہتے ہیں. اب سرکار غوث پاک نے یہ جو روح جسمانی فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان چار روحوں کے مقامات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے. آپ نے تو اور تھوڑا تفصیلاً فرمایا، میں مختصر
अर्ज कर दे रहा हूँ, जो बात आपके अच्छे से समझ में आ जाए, जो बात समझाना चाहते हैं गौस पाक, मैं खुलासे के तौर पर आम फहम जबान में समझा दे रहा हूँ, ताकि पूरी फसल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये फसल ज्यादा तवील नहीं है, मुख्तसर ही आपने बयान फरमाया, एक ही दो सफ़े की है। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि और उन रूह का जो मकाम है, आपने फरमाया कि उन रूहों का मकाम 4 जगह पे है। यानी फरमाया कि रूह जिस्मानी जो है उसका मकाम आपने फरमाया खून और गोश्त के दरमियान है, खून और गोश्त के दरमियान है उस रूह जिस्मानी का मकाम। और जब वो रूह जब तरक्की करके मलकूत में जाती है तो मलकूत में उस रूह का मकाम, रूह सैरानी रवानी का मकाम कल्ब है, यानी दिल है, दिल में उसकी जगह है। और फिर फरमाया और जब वो जबरूत में जाती है वो रूह, तो रूह सुल्तानी हो जाती है। और रूह सुल्तानी का मकाम गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने जान में रखा है, जान में जान में उसकी जगह है। रूह सुल्तानी की जगह जान में है, बंदे की जान जहां होती है। और फिर फरमाया और रूह कुदसी यानी आलम लाहूत में जब वो रूह जाती है और तरक्की करती है आलम लाहूत में, तो आलम लाहूत में जो रूह कुदसी उसका मकाम और जगह आलम बातिन है, यानी बातिन है, इंसान का बातिन है। अब सरकार गौस पाक आखिरी जुमला इरशाद आपने ये फरमाया कि बंदे तू अपने अंदर सैर कर और अपने वजूद में खो जा और अपने वजूद ही को झांक कि इसी में तेरे अंदर नासूद भी है, तेरे अंदर मलकूत भी है, तेरे अंदर जबरूत भी है, तेरे अंदर लाहूत भी है, तेरे अंदर ही ये सारी रूहें मौजूद हैं। और ये हर रूह ने, अब तीसरी फसल में गौस पाक फरमाए, वो तीसरी फसल का मैं बयान अगली वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा। आपने फरमाया कि ये रूहें अपनी अलग अलग दुकान खोल के बैठी हैं, उन दुकानों से तुम क्या सामान खरीदते हो उसी के हिसाब से कयामत के दिन तुम्हारा फैसला होना है। तो वो इंशाल्लाह मैं तीसरी फसल अगली वीडियो में बयान कर दूंगा। अभी इस पर मैं बस मुख्तसर ये समझाना है कि गौस पाक यहाँ फरमा रहे हैं कि बंदे तू लाहूत से जबरूत में आया, जबरूत से तेरी रूह मलकूत में आई और मलकूत से नासूत में आई, और ये सारी रूहें तेरे अंदर मौजूद हैं। तो तुझे अपने बातिन में ही सैर करनी है और बातिन की ही सारे मकामात को रोशन करना है और इनको तरक्की देके अल्लाह, यानी जो तू आलम रूह तू यहाँ पास आ गया तो अब तेरे लिए नसीहत यह है कि तू आलम नासूत से फिर तरक्की करे और मलकूत में जाए, मलकूत की रूह को तरक्की देके जबरूती लिबास पहना के उसे रूह सुल्तानी बनाए, फिर वहां से तरक्की करके उसे रूह कुदसी बनाए, ताकि वो इस लायक हो सके कि उस पर अल्लाह का जलवा नजर आ सके और उसे अल्लाह की रजा कुर्ब मार्फत और दीदार और जात का मुशाहदा उसे नसीब हो सके। तो यह गौस पाक ने फरमाया कि बंदे की आला मकाम से असफल साफिलीन तक की ये नुज़ूल था। और इसका उरूज भी यही है कि बंदे को चाहिए, जैसा आपने पहली फसल में फरमाया, कि बंदा उरूज की तरफ मुतवज्जे हो, उरूज की तरफ मुतवज्जे हो। अब इसके लिए मैं एक हिकायत बयान कर दे रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए कि गौस पाक ये फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू कुछ और है, तेरी शान कुछ और है, तू कहीं और से आया है और तू इस दुनिया में फंस गया है। तुझे चाहिए कि इसी दुनिया के गोरख धंधों में न रहे, बल्कि तू अपनी हकीकत जान, यानी अपनी बातिन में सैर कर, अपने आप को समझ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो खुद को जिस दिन तुम पहचान लोगे, खुद की सैर कर लोगे, उसी दिन तुम खुद के अंदर ही खुदा को पा जाओगे। जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो जो बातिन हमारी परेशानी क्या है कि हम अल्लाह को बाहर ढूंढा करते हैं। अल्लाह बाहर नहीं है, अल्लाह तेरे अंदर ही है, अल्लाह तबारक व तआला तेरे अंदर ही है। जैसे बुजुर्गान दीन ने फरमाया, 2 आलम है, एक आलम सगीर है, एक आलम कबीर है। आलम कबीर उसे कहते हैं कि जो हमारी ये दुनिया चल रही है, तो इसमें एक निज़ाम है कि एक बादशाह होता है या एक वजीर आजम होता है, उससे पूरी रियाया होती है और उसकी सब मतलब एक बादशाह है जो हुकूमत कर रहा होता है पूरी दुनिया पे, और हर अवाम उन्नास होती है जो उसकी सारी बातें मानती है। इसी तरह आलम सगीर है, यानी आलम सगीर इंसान खुद है, उसकी जात है। और फरमाया बुज़ुर्गान दीन ने, और उसका बादशाह दिल है जो उसके तमाम आज़ा पर हुकूमत कर रहा होता है, और उस दिल का बादशाह होता है और दिल का वजीर दिमाग होता है। तो बंदे को दिमाग, और दिमाग जो वजीर होता है उसके सारे आज़ा ताबे होते हैं। तो आलम सगीर इंसान खुद होता है। यही गौस पाक फरमा रहे हैं कि बंदे तो खुद को पहचान
تو खुद एक सल्तनत में बैठा हुआ है, और जिस दिन तो खुद को जान लेगा उसी दिन तुझे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी। तो खुद को पहचान ले, तब तू अपने रब को पहचान पाएगा। तो इसी तरह आलिम सगीर और कबीर बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया, इसी हकीकत समझने एक हिकायत में अर्ज कर रहा हूँ कि एक गांव वाला था, एक गांव वाला था, और वो गांव वाला जो है किसी तरह एक जंगल में जा रहा था अपनी बकरियां चराते चराते, इत्तेफाक से उसे एक शेर का बच्चा मिल गया। जब उसे शेर का बच्चा मिल गया तो उसने उसको उठा लिया। अब वो बच्चा था शेर का, तो उसको अपने साथ ले आया और बकरियों के साथ ही रखता, बकरियों के साथ रखता, उन्हीं के साथ दूध पिलाता और बकरियों के साथ रहता। वो जो शेर का बच्चा था वो खुद को जो है अपनी हकीकत खो दिया, हमारी तरह, इंसानों की तरह। तो उसने अपनी हकीकत भूल गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ। वो खुद को मालिक का कुत्ता समझने लगा और वो बकरियों की हिफाजत भी करता। वो धीरे 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 जब बड़ा होता गया तो एक दिन वो बड़ा हो गया था, लेकिन वो शेर था तो, लेकिन वो खुद को कुत्ता समझने लगा था, मालिक का, अपने उस गांव वाले का कुत्ता समझ रहा था, और कुत्ता समझ के जो है अपनी बकरियों की हिफाजत भी करता था। इत्तेफाक से एक दूसरा शेर जो है जंगल से कहीं से आ गया, उन बकरियों पे हमला करना चाहा। तो चूंकि शेर का ये जो बच्चा था ये बड़ा हो गया था, ये शेर तो था लेकिन ये अपनी हकीकत भूल चुका था। अपनी हकीकत भूलने की वजह से ये शेर ने जो है खुद को कुत्ता तो समझ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो ताकत और सलाहियत थी वो शेरी वाली थी। तो उसने बकरियों को बचाने के लिए उस नए शेर से लड़ना शुरू कर दिया जिसने बकरियों पर हमला किया था। जब उससे लड़ाई हुई तो शेर ने, जो आया था शिकार करने, उसने कहा कि तू मुझसे क्यों लड़ रहा है, तू भी तो वही है जो मैं हूँ, तू तो मेरी ही नस्ल का है। उसने कहा मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तो इस गांव वाले का कुत्ता हूँ। तो शेर ने कहा नहीं, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तू तो मेरा भाई है, और चल मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाता हूँ। तो उस शेर ने जो है उस दूसरे शेर को, जो खुद को मालिक का कुत्ता समझ रहा था, उसको ले गया जंगल में और दरिया के किनारे ले गया, और दरिया में उसने अपना चेहरा दिखाया और उससे कहा तू अपना चेहरा देख, देख हम दोनों का चेहरा मिल रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा बस उस गांव वाले ने तुझे धोखा दिया है, तेरी हकीकत तुझसे छुपा दी, असल में हम दोनों भाई हैं, हम दोनों शेर ही हैं, और वो बकरियां हैं, वो हमारी गिजा है, ना कि हमारा काम उन पे हमला करना है, उनको गिजा बनाना है, ना कि उनकी हिफाजत करना। जब शेर ने उसकी हकीकत दिखाई तो वो भी आ गया और उसने जाके फिर दोनों ने मिलकर बकरियों पर हमला किया। तो उस गांव वाले ने कहा कि तू तो मेरे साथ पला हुआ है, तू क्यों हमला कर रहा है? तो उसने कहा बस अब तक मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मुझे ये, मैं तो खुद को कुत्ता समझने लगा था, तूने मेरी हकीकत मुझसे खो दी थी, और आज मेरे भाई ने आकर मुझे मेरी हकीकत बता दी कि मैं शेर हूँ, कुत्ता नहीं हूँ। तो मैं आज इसने मेरी आंखें खोल दी। तो बस बुजुर्गों ने फरमाया, ये जो हिकायत है, फरमाया कि ये इंसान के लिए ही है कि इंसान खुद को अल्लाह ने आला बनाया है, लेकिन वो खुद को असफला साफलीन में रहकर वो खुद को कमतर समझने लगा, अदना बना लिया। वो नहीं जानता कि अल्लाह ने उसे कितना बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह ने इंसान बनाया यानी अशरफुल मखलूकात, तमाम इंसानों में सब, यानी तमाम खलायक में और तमाम मखलूकात में सबसे अफजल इंसान को बनाया। तो इंसान अपनी हकीकत भूल गया। जिस दिन इंसान असल में इंसान बन जाएगा तब वो अल्लाह के खिलाफत के लायक हो जाता है। जैसा कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैंने एक बार जो है एक बुजुर्ग को देखा कि वो रूम की गलियों में दिन की उजाले में या सूरज की रोशनी में, दिन तेज धूप में गलियों में लालटेन लेकर घूम रहे थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत, इतनी तेज धूप में, दिन में, इतने उजाले में आप लालटेन लेकर क्या चीज ढूंढ रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूं, मैं इंसान ढूंढ रहा हूं। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूं, आज तक मैंने कभी इंसान नहीं देखा, आज तक मैंने कभी इंसान नहीं देखा। तो मतलब यह है कि इंसान वो होता है जिसकी रूह जिस्मानी से तरक्की करके रूह सुल्तानी बन जाए या रूह कुदसी हो जाए। तो इसलिए गौस पाक फरमाते कि बंदे तू अपनी हकीकत जान के तू है कौन। जब तू अपनी हकीकत जान लेगा तो उस वक्त तू अपने वतन असली की तरफ जाने के सर से करेगा, तब तू इंसानियत के मकाम पर पहुंचेगा। अब तब तू अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार है और अल्लाह की खिलाफत के लायक होगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान वो होता है
जिसे अल्लाह ने सबसे अशरफ बनाया और अपनी जमीन पर उसको अपना खलीफा और नायब मुकर्रर कर दिया। ये वो खिलाफत है जिससे इब्लीस को हसद और जलन था। वो नहीं चाहता था कि इंसान अल्लाह का खलीफा बने और दुनिया पर उसका राज हो, इसलिए उसको हसद हुआ और उसने आदम अलैहिस्सलाम के सजदे से इनकार किया। तो बात यही है, इसलिए वो नहीं चाहता है, शैतान भी लगा हुआ है कि बंदे को उसकी असली हकीकत भुला दी जाए, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि वही इंसान के उस मकाम पर पहुंच जाए कि अल्लाह उसे अपनी खिलाफत से नवाज दे और ये कायनात उसकी गुलामी में आ जाए। क्योंकि अल्लाह ने सबसे अफजल इंसान को बनाया बशर्ते कि इंसान हकीकत में बन जाए। और हमारी हालत ये है कि हम इंसान तो छोड़ो, हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। हमारी सिफात जो है, अखलाक रजीला जो है, वो हमें जानवरों से भी गिरा देते हैं। यह इंसान जब अपनी हकीकत पे आ जाए तो फरिश्तों से भी आला हो जाता है, और इंसान जब अपनी बुराई पे आ जाता है तो वह शैतान से भी बड़ा मरदूद हो जाता है। जैसा कि फिरौन ने एक बार कहा कि इब्लीस ये बता कि तू बड़ा शैतान है कि मैं बड़ा शैतान हूँ। तो फिरौन था तो इंसानी, तो शैतान ने कहा कि नहीं, मैं छोटा शैतान हूँ, तू बड़ा, मुझसे भी बड़ा शैतान है। तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के सजदे से इनकार किया था, लेकिन तू मुझसे भी बड़ा शैतान इसलिए कि तूने तो खुदा ही का दावा कर दिया। मैंने कभी खुदा बनने की कोशिश नहीं की, यानी मैं खुदाई मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन तू मुझसे भी बड़ा शैतान है कि तूने खुद को खुदा ही डिक्लेयर कर दिया। तो बस बात वही है कि इंसान जब अपनी हकीकत भूल जाए और गुमराही की तरफ चला जाए तो वो ऐसे बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है कि वो शैतान को भी पीछे छोड़ देता है। इब्लीस भी उससे पनाह मांगता है, यानी उससे भी बड़ा शैतान हो जाता है। और लेकिन जब इंसान अपने मर्तबे पर आ जाए, अपनी हकीकत को पा ले और वतन असली की तरफ लौट आए, अल्लाह के कुर्ब को पा ले, तो फिर उसका मर्तबा मलाइका और आसमान के मलाइका और फरिश्तों से भी अफजल तर हो जाता है, और तमाम मखलूक उसकी गुलामी में आ जाते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे बाज़ हदीस में मैंने पहले बयान किया कि अल्लाह का भी महबूब होता है, आसमान के तमाम मलाइका का भी महबूब होता है, जमीन के तमाम लोगों को, यानी महबूब खलाइक भी होता है और महबूब इलाही भी बन जाता है। यानी और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है कि लौह कलम तेरे। फिर लौह कलम भी उसकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह चलाता है। अगर वो जिसको कह दे, जिसके लिए जो कह दे, वही अल्लाह उसके लिए फैसला लिख देता है। तो ये तब होता है जब वो अल्लाह का खलीफा बन चुका होता है, अपनी हकीकत को पा चुका होता है। एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा, एक बुजुर्ग थे, मजदूर टाइप के बुजुर्ग थे, वो बैठे हुए थे, उनके सामने से एक बादशाह गुजरा और उसकी पूरी फौज गुजरी। और चूंकि वो मजलूब थे, अल्लाह वाले थे, कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि हाल और कैफियत उनकी ऐसी थी अल्लाह में खोज, जो कि जिनके पर्दे उठ जाते हैं फिर उनके मामलात कुछ और होते हैं। तो वो अल्लाह के आशिक थे, मजलूब थे, तो उनके सामने से बादशाह गुजरा और पूरी फौज गुजर गई। तो उन्होंने जो है कपड़े अपने बगल में, उनके कंबल रखा था, उन्होंने कंबल उठा के भी अपने ऊपर नहीं डाला, यानी ऐसी बिरहना बैठे रहे। लेकिन उस बादशाह की फौज गुजरने के बाद, बादशाह के गुजरने के बाद 2 सिपाही जब गुजरे तो फौरन उन बुजुर्ग ने अपना कंबल उठाया और अपने ऊपर डाल लिया, पर्दा का मतलब अपने आप को छुपा लिया, अपना सतर ढांप दिया। तो एक और दूसरे शख्स बैठा हुआ नोटिस कर रहा था। जब वो 2 शख्स भी गुजर गए, फिर उन्होंने कंबल उठा के फेंक दिया। तो वो शख्स आया, कहना हजरत मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक बादशाह और उसकी पूरी फौज गुजर गई, उनसे आपने पर्दा नहीं किया, उनसे अपने आप को हया नहीं किया आपने, और बाद में सिर्फ 2 सिपाही जा रहे थे तो उनके लिए आपने कंबल ओढ़ लिया और अपना सतर भी पा लिया, ऐसा क्यों किया? तो वो मजलूम बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा तुम जानना चाहते हो, चलो मेरे साथ। आगे ले गए जहां वो बादशाह जा रहा था, उनकी फौज जा रही थी, और आगे पहुंचे, उस फौज और बादशाह से भी आगे जब पहुंच के फिर उन्होंने अपना कंबल उस शख्स, सवाल करने वाले के शख्स के सर पर डाल दिया और कहने लगे कि देखो। जब उसने देखा तो बादशाह और उसकी फौज इंसान नहीं थी बल्कि जानवर थे। कोई गधा था, कोई बैल था, कोई कुत्ता था, अलग अलग जानवर थे, अलग अलग जानवर किस्मों के थे। तो आपने फरमाया, उन बुजुर्ग ने, बताओ जानवरों से भी क्या हया किया जाता है, जानवरों से भी क्या पर्दा किया जाता है? और फिर फरमाया कि देखो उन 2 सिपाहियों को जिनसे मैंने पर्दा किया, जब उनको देखा तो वो दोनों इंसान थे, वो जानवर नहीं थे। तो उन्होंने फरमाया बस इंसानों से हया किया जाता है, तो मैंने वही काम किया। तो बस बात असल में समझाना मकसद ये है
کہ انسان اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرے. اس پر ایک تفصیلی میں الگ ویڈیو بیان کر دوں گا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کے اندر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے قیامت کے دن فیصلہ بھی اسی صفت کے ساتھ ہونا ہے. جس جانور کی صفت ہوگی، اگر اس کے اندر زیادہ بناؤ سنوار کی صفت ہے تو وہ مور کی صفت پہ ہے. بہت زیادہ بولتا ہے، فضول باتیں بہت زیادہ کرتا ہے تو طوطے کی صفت ہے. اسی طرح لالچ بہت ہے تو لومڑی کی صفت ہے. غصہ بہت ہے تو شیر کی صفت ہے. تو الگ الگ جانوروں کی صفت ہوتی ہے جن کو اخلاق رذیلہ بزرگان دین نے فرمایا کہ یہی اخلاق بندے کو انسان نہیں بننے دیتے اور وطن اصلی کی طرف ترقی نہیں کرنے دیتے، اور اس لیے جو ہے انسان کو انسان کے مقام سے گرا چکے ہوتے ہیں. تو یہی اخلاق رذیلہ کو نکالا جاتا ہے اللہ کی ذکر کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے، تاکہ بندے کے اندر انسانی صفات آ جائے، فرشتوں کی صفت آ جائے، تاکہ انسان پھر فرشتے صفت ہو کر پھر ملکوتی صفت ہو کے پھر ملکوتی روح اس کی ہو جائے، اور پھر جبروتی روح ہو کے یہاں تک کہ لاہوتی روح ہو کے اسے روح قدسی میں وہ بن کر وہ اللہ کو بھی پالے. تو بس سمجھانا مقصد یہ ہے، پورا حاصل کلام یہ ہے کہ بندے کو چاہیے اپنی غور و فکر کرے، باہر کی دنیا کی خبر نہ کرے، بلکہ خود کے اوپر غور کرے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری روح کہاں سے آئی. وہی غوث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ تو کہیں اور سے آیا ہے، تو وہاں سے آیا ہے تو وہیں کی طرف اپنا سفر اختیار کر اور طالب مولا بن کر اپنے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حسنہ سے بدل، اور روح جسمانی کو ترقی دے کے روح ملکانی بنا، یعنی ملکوت کا لباس پہنا کر اسے روح سیرانی روانی بنا. پھر وہاں سے ترقی دے کے جبروتی روح کا جبروتی لباس پہنا کر اسے روح سلطانی بنا، اور پھر وہاں سے بھی ترقی دے کے اسے روح قدسی بنا، جہاں اللہ کا دیدار اور اس کا قرب تجھے نصیب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کا صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانیت کے بلند مقام سے نوازے، اور اپنے حبیب کے صدقے، غوث پاک کے صدقے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.